آج آپ کو بتاؤں گا کہ سجدے سہو کب واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ سجدے سہو کا مطلب ہوتا ہے غلطی. کیا ہوتا ہے؟ اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ فرمایا کہ نماز جیسی افضل عبادات میں بھی اگر غلطی ہو جائے تو وہاں بھی غلطی کو دہرانے کا موقع دیا گیا ہے کہ آپ وہاں بھی غلطی کو کیا کر سکتے ہیں, صحیح. جب اللہ نماز جیسی غلطیوں کو بھی وہاں پہ ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ غلطی کو سدھار لو, لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اگر غلطی ہو جائے تو لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو نماز میں بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ہم کیا ہوتے ہیں کہ لوگوں غلطیوں کو معاف نہیں کرتے ہیں جب تک کہ اس سے ہم بدلہ نہ لے لیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا, کہا کہ سب سے بڑا بندہ وہ ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے. بہرحال سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ جو چیزیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہے. جو چیز نماز میں واجب ہے, اس سے پہلے کیا واجبات تھے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ نماز میں کیا کیا واجب ہے. اگر ان میں سے اگر کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے, یہ بھی دھیان میں رکھیے گا, بھولے سے چھوٹ جائے, اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑے گا تو نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہوگا. لیکن کہا کہ اگر بھول سے چھوٹ جائے, بھول چوک تو ہونی ہے نا, نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اکثر بندوں سے بھول چوک ہو ہی جاتی ہے, کیونکہ جیسے ہی ہم نماز میں جاتے ہیں تو بہت سارے خیالاتوں کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہو جاتے ہیں تو بندہ بھول جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آپشن رکھا ہے کہ آپ سجدہ سہو کر کے اس نماز کی تکمیل کر لیجئے, ہے نا. تو اگر واجبات اگر بھول جائے تو اس کو کیا کریں گے, سجدہ سہو کریں گے. اب یہاں بتاتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے, سوچتے کہہ رہے ہو ایسی ہوگا, نہیں. کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے بعد داہنے طرف سلام پھیر کر دو سجدے کریں اور پھر شروع سے التحیات وغیرہ سب پڑھ کر کے سلام پھیر دیں. سمجھ رہے؟ جیسے کہ داہنے طرف آپ السلام علیکم کر کے اور 2 سجدے کیا کریں گے اور پھر سے کیا کریں گے, تحیات پڑھیں گے, دعائے معصورہ پڑھیں گے, درود ابراہیم پڑھیں گے اور سلام کیا کر دیں گے, آپ سلام پھیر دیں گے. لیکن یاد رہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد یہ کام کرنا ہے آپ کو. کیا کرنا ہے؟ التحیات پڑھنے کے بعد اور 2 سجدے کرنے کے بعد بھی کیا کرنا ہے آپ کو. ایسا نہیں کہ ایک ہی کافی ہو گئے ہیں, ورنہ وجوبیت ساقط نہیں ہوں گیا. اگر کوئی بندہ جو ہے دونوں طرف سلام پھیر دے, ایک طرف سلام پھیرنے کا حکم ہے نا, لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے دونوں طرف سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز وہیں پہ فاسد ہو جائے گی, پھر سے پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر انجانے میں پڑھ لے, انجانے میں پھیر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بتاتے ہیں کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس کے لیے سجدہ سہو نہ کیا اور نماز ختم کر دی تو نماز دہرانا واجب ہے. واجب چھوٹ گیا اور اس نے کیا کیا, سجدہ سہو, تو نماز کو کیا کرنا پڑے گا, پھر سے دہرانا پڑے گا. اگر قصدن کوئی واجب چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دہرانا واجب ہے. قصدن جان بوجھ کر کے کوئی چھوڑا تو نماز کو پھر سے دہرانا واجب ہوگا, لیکن انجانے میں چھوٹ جائے تب یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے. جو باتیں نماز میں فرض ہے اگر ان میں کوئی بات چھوٹ گئی تو نماز نہ ہوئی اور سجدہ سہو بھی یہ بھی کبھی پوری نہیں کی جا سکتی بلکہ پھر سے پڑھنا فرض ہے. یہ واجبات کے لیے ہے. اگر آپ نے فرائض چھوڑے ہیں, نماز کے فرائض آپ کو بتایا تھا نا, نماز کے فرائض 6 ہیں, قیام, قرات, رکوع, سجود اور قید اخیرہ, خروج بیسنی. یہ 6 شرائط. اگر ان میں سے اگر کسی کو بھی آپ نے چھوڑ دیا, یعنی رکوع نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, یا قید اخیرہ نہیں کیا, تو یہ ساری باتیں چھوڑنے کے بعد سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا. اب یہاں پہ امپورٹنٹ مسائل آ رہے ہیں کہ کن باتوں سے جو ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب نہیں, کن باتوں کو چھوٹنے سے سجدہ سہو نہیں ہے. وہ باتیں جو نماز میں سنت یا مستحب ہے, جیسے تعوذ, تسمیہ, آمین, تکبیرات انتقال, تسبیحات, ان کے ترک سے سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی. سنت و مستحب چھوڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. نماز میں کچھ کمی آتی ہے, ثواب میں کچھ کمی آتی ہے, ورنہ آپ کی نماز ہو جائے گی.
एक नमाज में कई वाजिबात छूट गए तो एक ही बार वही 2 सजदे सौ के लिए सब काफी हैं, चंद बार सजदे सौ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 अगर सजदे सौ हो गए हो, है ना, तो अब बार बार 3 मरतबा करें, ऐसा तो परेशान हो जाएगा, है ना। हाँ, कायदे उला में पूरी अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकअत के लिए खड़े होने में इतनी देर की जितनी देर में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ सके तो सजदा सौ वाजिब है। ये गलती बहुत सारे अइम्मा करते हैं। कायदे उला मिसाल के तौर पर 4 रकअत वाली नमाज पढ़ रहे थे हम, और 2 रकअत में जब हम बैठते हैं तो अगर आपने अत्तहियात पढ़ने के बाद इतनी देर आप बैठ गए, जितनी देर में आप क्या कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कितना लगा, मेरे ख्याल से 2 सेकंड या 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। इतनी देर भी अगर आपने बैठ गया तो क्या होगा, आपके सजदे सौ। और लोग जो इत्मीनान और सुकून के साथ पूछते हैं खरामा खरामा, ऐसा नहीं है, आपकी भी नमाज गई और सारे मुक्तदियों की भी नमाज गई। मैंने पहले भी कहा था कि इमाम बनना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है। अगर आप अकेला नमाज पढ़ते हैं तो आप अकेले नमाज के जामिन होंगे, लेकिन आपके पीछे 100 मुक्तदी नमाज पढ़ते हैं तो 100 मुक्तदियों के नमाज का जामिन आप हैं। अगर आपकी नमाज खराब तो सबकी नमाज खराब, सबकी बारगाह में सबको जवाब देना होगा। ये लोग मुक्तदी तो पल्ला झाड़ देंगे कि अल्लाह हम तो इख्तदी तो बिहार इमाम कह करके पीछे खड़े हुए थे, अभी कैसे नमाज पढ़ाए इनसे पूछिए, असमझ। इसीलिए मसाइल जानकर ही मुसल्ले पर आगे बढ़िए, है ना। आजकल तो मत पूछिए, वो लोग भी मुसल्ला पर आ जाते हैं जिनको ये भी पता नहीं कि सजदा सौ कब वाजिब होता है। एक मरतबा मैंने आपको बताया भी था कि एक बड़े तुर्रम खां थे, है ना, तो बड़ी टोकते थे वो किसी भी इमाम को। होते हैं कुछ लोग जो है तनकीद करने वाले होते हैं, हर मस्जिद में होते हैं, लेकिन अगर वही इमाम अगर चला जाए ना, मुअज्जिन चला जाए तो सबकी नानी याद आ जाती है, कौन अजान देगा कौन नमाज पढ़ाएगा। लेकिन जब इमाम हो तो सब मुफ्ती बने रहते हैं, यहाँ फतवा देंगे वहां मसला बताएंगे। इत्तेफाक के तौर पर इमाम साहब एक दिन चले गए छुट्टी में घर, तो नमाज कौन पढ़ाएगा भाई, तो जो सबसे ज्यादा बोलता था ना उसी को कहा कि चलिए भाई आज आप जो है नमाज पढ़ाइए। अब भाई जब सारे लोग इज्तिमाई तौर पर कह दिया कि चलिए आप नमाज पढ़ाइए, बंदा मरता क्या ना करता, आगे बढ़ा। जैसे ही उसने आगे बढ़ा नमाज पढ़ाने के लिए मगरिब की नमाज में, समझ रहे, तो पहली रकत में उसने सूरह नास पढ़ दी। क्या कर दी, सूरह नास पहली रकत में पढ़ दी। अब जब पहली रकत में पढ़ी तो अब दूसरे रकत में बंदा सोचने लगा कौन सी सूरत में पढ़ूं, अगर दोबारा ये सूरत पढ़ूंगा तो सजदा सौ वाजिब होगा या नहीं होगा। अगर सजदा सौ करूंगा तो लोग पूछेंगे काहे किया, नहीं करूंगा तो भी पूछेंगे काहे नहीं किया, समझ रहे, क्योंकि मसला पता तो था ही नहीं कि भाई कि अगर तकरारे सूरत से सजदा सौ वाजिब नहीं होते। अब मसला पता हो तब ना, बड़ा कश्मकश में है ये बंदा, समझ रहे। बहरहाल अब क्या करता, परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। सजदा में गया, पहली रकत के सजदे में जैसे ही गया तो अब सोचने लगा कि करूं क्या। उसने क्या किया कि जो बड़ी मस्जिद होती है तो उधर ही से निकलने का रास्ता होता है, मेंबर के पास जो है एक गली बनाई रहती है, तो उस निकलने का रास्ता होता है। वो बंदा सजदा में गया, सब सजदे में थे, बंदा चुपके से निकल गया। क्या किया, निकल गया। लोग भाई 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला पढ़े, 5 मरतबा पढ़े, 7 हो गया, 11, 21, आखिर उठे तो उठे कब, आखिर तो कभी हुआ नहीं, समझ। तो परेशान, आखिर में एक मुक्तदी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उठ के देखा, कहा उठ जाओ भाई इमाम गायब हो गया। क्या हुआ, इमाम गायब हो गया। तो सजदे सौ के मसाइल ये जानना जरूरी है कि कब सजदा सौ वाजिब होता है, ऐसा नहीं कसमकस में आपको मसला छोड़ना पड़ जाए, है ना। और ये बंदा सोचना पड़ गया था ना कि करूं या नहीं करूं, करूंगा तो लोग पूछे काहे किया, नहीं करूंगा फिर भी पूछेगा काहे नहीं किया, तो जवाब क्या देंगे। बहरहाल पुख्ता तौर पर मालूम हो कि सजदे सौ किन बातों से वाजिब होते हैं। तो फरमाया कि क़िरात वगैरह किसी मौके पर सोचने लगा, इतनी देर हुई कि 3 बार सुभान रब्बी सुभान अल्लाह कह सके तो सजदे सौ वाजिब है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला ये। अल्हम्द के बाद आप बहुत अइम्मा को देखते होंगे जो सोचने लगते हैं कि कौन सी सूरत पढ़ूं मैं, कौन सी आयत पढ़ूं, और सोचने में इतनी ताखीर कर देते हैं कि 3 मरतबा कोई ध्यान में आ रहा है।
हम समझ रहे तुम्हारा, समझ रहे? इतनी ताखीर करना सजदे सौ वाजिब कर देता है। 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने में कितना वक्त लगता है जी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, इतनी देर, है ना? तो सजदे सौ वाजिब हो गए। अब गिने भी तो कौन गिने भाई, कहे तो कहे। लेकिन ये बात मैंने अर्ज किया ना कि आपको रब की बारगाह में जवाब देने में, इस मसले से अगर वाकिफ आप होते हैं, ना वाकिफ अगर आप नहीं जानते हैं, तो ला इल्मी कोई दलील नहीं है आपके लिए। ला इल्मी कोई दलील, रब की बारगाह में ये नहीं कहिएगा कि रब कदीर हम नहीं जानते थे, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, हर एक मर्द और औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज था। और अब फरमाया क्यों नहीं सीखा? जवाब है क्यों नहीं सीखा? तो वहां क्या जवाब देंगे? दूसरी बात, चलिए दूसरी रकअत को चौथी समझकर सलाम फेर दिया, फिर याद आया तो नमाज पूरी करके सजदा सौ करे। दूसरी रकअत करके, हाँ ये मसला हमने बताया भी था कि दूसरी रकअत को चौथी समझ करके सलाम फेर दिया, फिर याद आया तो पूरी करके सजदा सौ करे। इसका मैटर ये है कि आप जो है दोनों तरफ अगर सलाम फेर दिए हैं 2 ही रकअत में, जबकि आपको 4 पढ़ने थे और 2 ही में आपने सलाम फेर दिया, और कोई ऐसी हरकत आपने नहीं किया जो माने नमाज हो, नमाज में मना हो। सलाम फेरने के बाद लोग आगे पीछे हो जाते हैं, है ना, या इधर उधर कर देते हैं, तो ऐसा आपने कोई ऐसी हरकत कोई नहीं किया आपने, तो आप क्या कीजिए, खड़े होइए, ठीक है, रकअत को पूरी कीजिए और फिर क्या कीजिए, आखिर में सजदा सौ कीजिए। एकदम वह ध्यान से सुनिएगा, समझना है ना। मुक्तदी अत्तहियात ना खत्म करने पाया था कि इमाम तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो गया, तो मुक्तदी पर वाजिब है कि अपनी अत्तहियात पूरी करके खड़ा हो, अगरचे देर हो जाए। लोग जो है इक्तदा करना शुरू कर देते हैं, जबकि मैंने कहा था कि वाजिबात में मुक्तदी के लिए इक्तदा करना इमाम के लिए जरूरी नहीं है। वाजिबात जो है, जैसे अत्तहियात पढ़ना आपके लिए वाजिब है, तो यहाँ पर इमाम की इक्तदा आपके लिए जरूरी है। अगर इमाम पढ़ लिया है अत्तहियात तो खड़ा हो गया है और आप नहीं पढ़े हैं, तो आप पर वाजिब है कि आप पूरी अत्तहियात पढ़िए, फिर क्या कीजिए, खड़े। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, एक हरफ भी छोड़ देते हैं, तो जानबूझकर छोड़ते हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर अनजाने में छूट जाता है तो बाद में सजदा सौ कर लीजिए। हाँ, मुक्तदी ने रुकू या सजदे में 3 बार तस्बीह न कही, ठीक है, इमाम ने सर उठा लिया तो मुक्तदी भी सर उठा ले, बाकी तस्बीह छोड़ दे, क्योंकि तस्बीह पढ़ना सुन्नत है। जिस शख्स ने भूल कर कायदे उला ना किया, भूल कर कायदे उला ना किया, तीसरे रकअत के लिए खड़ा होने लगा, तो अगर अभी इतना खड़ा हुआ है कि कायदा के करीब है, तो बैठ जाए और कायदा करे, नमाज सही है। और सजदा सौ भी लाजिम ना आया, अगर इतना खड़ा हुआ कि खड़े होने के करीब हो गया, तो फिर खड़ा ही हो जाए और आखिर में सजदा सौ कर। ये मसला भी बहुत ही इंपोर्टेंट है, समझ रहे हैं। अगर आप जो है 4 रकअत वाली नमाज पढ़ रहे हैं और आपको जो है 2 रकअत में बैठना था, 2 रकअत में बैठना था, और आपने जो है 2 रकअत में नहीं बैठा, खड़ा हो रहे थे, तो आप इतनी देर मतलब इतना खड़ा हुए थे कि मतलब ये कि बैठने के करीब है, थोड़ा सा उठे ही थे, थोड़ा उठे ही थे, तो याद आया कि अभी हमको कायदा उला करनी है, आप बैठ जाइए, ठीक है, वहां पर सजदा सौ की हाजत। और अगर आप इतना खड़ा हो गए कि खड़ा होने के करीब हो गए, खड़ा होने के यानी कि आपका पैर हाथ भी सीधा हो गया है, तो आप खड़ा ही हो जाइए, नमाज को पूरी कीजिए और क्या कीजिए, क्योंकि कायदे अखीरा करना ये फर्ज है, कायदे उला करना फर्ज। कायदे अखीरा करना मसला फर्ज में से क्या है, कायदे अखीरा करना फर्ज है ना। और जब हम 4 पढ़ रहे हैं तो 4 में कायदे अखीरा चौथी रकअत में होगी, 2 रकअत में कायदे अखीरा नहीं होगी, 2 रकअत में कायदे उला होगी, समझ रहे हैं। तो वहां पर जो है आपके लिए ये वाजिब था और वाजिब छूट गया अनजाने में, तो आप क्या कीजिए, बाद में सजदा सौ कीजिए। हाँ, और अगर कायदे अखीरा करना भूल गया और खड़ा हो गया, तो जब तक कि उस रकअत का सजदा ना किया हो उसे छोड़ दे। अगर कायदे अखीरा करना भूल गया और खड़ा हो गया, तो जब तक कि उस रकअत का सजदा ना किया हो उसे छोड़ दे और बैठ जाए और नमाज पूरी कर सजदा सौ करे। और अगर उस रकअत का सजदा कर लिया तो फर्ज नमाज जाती रही, अगर चाहे तो 1 रकअत और मिलाए, सवाए मगरिब के ये कुल नफिल नमाज हो जाएगी, फर्ज फिर पढ़े। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं
ٹھیک ہے. اگر اور قاعدے اخیرہ کرنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک کہ آپ جو ہے وہ سجدہ